जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, ये गुजरात अहमदाबाद शहर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ और यह बुद्ध की मूर्ति थी। यह थाईलैंड से लाई गई बुद्ध की मूर्ति और यह भीम ज्योत फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया प्रबुद्ध बुद्ध विहार के अंदर यह मूर्ति की स्थापना हुई। इस मूर्ति की स्थापना करते समय भंतेगण उपस्थित थे और काफ़ी बाल भंते जो श्रामणेर दीक्षा लिए हुए थे और उनके उपस्थिति में तथागत बुद्ध की मूर्ति की स्थापना हुई। और यह स्थापना करते समय यहाँ पर उसके पहले काफ़ी रैली जुलूस के साथ में उसकी पदयात्रा निकाली गई और उसके बाद विहार में लाके स्थापना की गई थी। और इसी दौरान जो श्रामणेर बनते थे, जो बाल बनते, इनको बुद्ध की शिक्षा का परिचय कराते हुए पंचशील का परिचय कराया और अपने जीवन में पंचशील का महत्व क्या होता है यह समझाया। तो दोस्तों, यह वीडियो में आप खास अपने बाल भंते जो छोटे उम्र के भंते हैं, उन्होंने अपने अपने एक एक सील की बात बताने की कोशिश की कि जो हर व्यक्ति को अपना सील को कायम रखना है, मजबूत रखना है। तो दोस्तों, यह देखिए वीडियो। હવે આપણે સૌથી લાસ્ટ છે એ છે અમારા જે કસેબે છે એ સમજાવો हेलो इमाऊ तीजी लाइन समझा मांगू छू એટલે કે अर्थ समझा मांगू छू कामे सुविचार छारा सीखा कदम समाधियामी એટલે કે આજથી जीवन व्यभिचार नहीं करूं એટલે કે પર પુરુષ ગમન नहीं करूं मारा पति सिवाय अन्य कोई पण पति ऊपर नजर उठाઈને પણ नहीं। हाँ तो जो सामान्य રીતે जय भीम नमो बुद्धाय। परिचय आलवांतर नाम क्या है? पंचशील चौथा शील मूसावादा वेरमणि शिखापदम समाधियामी। આનો અર્થ થાય છે કે આ જીવન ખોટું અથવા કે જૂઠું નહીં બોલું અને સત્યના માર્ગ પર ચાલીશ અને તેનું અનુસરણ કરીશ। ઉદાહરણ તરીકે ખોટું અને જૂઠું એના બે પ્રકાર પડે। કાળું જૂઠ અને સફેદ જૂઠ। કાળું જૂઠ એટલે કે ઉદાહરણ તરીકે ઉદાહરણ જે રીતે મને મારા પિતાનો ફોન આવ્યો હોય અને હું અહીંયા અમરાઈવાડી સાઈડ હોઉં અને એમ કહું કે હું ગોમતીપુરમાં આવું તો આ 99% સાચું હોય એટલે આ કાળું જૂઠ કહેવાય। અને સફેદ જૂઠ ઉદાહરણ તરીકે કે હું અહીંયા ગોમતીપુરમાં આવું પરંતુ એમ કહું ફોનમાં કે હું મુંબઈમાં આવું તો આ સફેદ જૂઠ કહેવાય। 100% ખોટું। જય ભીમ નમો બુદ્ધાય। એમાં જે બીજા નંબરની લાઈન હતી અદિન્ન દાણા વેદમણી સિક્ખાપદમ સમાધિયામી, એ પાલી ભાષાનું વાક્ય છે। એનું હું તમને ગુજરાતી કરીને સમજાવું છું। એનો મતલબ એવો થાય છે કે હું આ જીવન ચોરી નહીં કરું, ભલે નહીં કોઈ પણ પ્રકારની ચોરી, સ્કૂલ કોલેજની એક્ઝામની પણ ચોરી હું નહીં કરું, ભલે દાગીના કે કોઈ બીની ચોરી તો અલગ જ, બટ પરીક્ષાની એક્ઝામની પણ ચોરી નહીં કરું, એવી શિક્ષા હું ગ્રહણ કરું છું। થેન્ક યુ। જય ભીમ નમો બુદ્ધાય। પાલી ભાષામાં જ આપણે બોલતા હોઈએ છીએ એટલે લોકોને ખબર નથી હોતી કે એનો અર્થ શું થાય છે। તો પંચશીલનો જે પહેલું સંકાયન છે પાણાથી પાતા વેરમણી શિખાપદમ સમાધિયામી, તો એનો અર્થ શું થાય છે ગુજરાતીમાં? એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હું હિંસા નહીં કરું, કોઈ પણ પ્રાણી માત્રની હિંસા નહીં કરું, પણ એમાં એવું છે કે અનાવશ્યક હિંસા નહીં કરું। આવશ્યક હોય ત્યારે જરૂર પડે તો તમારે હિંસા કરવી પડે। દાખલા તરીકે તમે બેઠા છો ધ્યાનમાં કે કોઈ પણ કામમાં અને તમને કોઈ મચ્છર કરડી રહ્યું છે, તો મચ્છર કરડવાથી તમે બીમાર થઈ શકો છો। તો એ મચ્છરને ભગાડવા માટે તમે એની ઉપર એને ઈજા પહોંચાડશો, તો મતલબ કે એને તમે હિંસા કરી છે।
પણ એ અનાવશ્યક હિંસામાં ગણતરી થાય છે. તો પાણાથી પાતા વેરમણીમાં જે કહેવામાં આવે છે કે હિંસા આપણે નથી કરવાની, પણ અનાવશ્યક હિંસા કોઈ તમારી પર કોઈ હથિયાર ઉપાડે તો તમે તમારા બચાવ માટે હિંસા કરો, એ અનાવશ્યક હિંસામાં આવે છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. તમે જે તીસરણ કર્યું એ પાલી ભાષામાં હતું. હું તમને એમને ગુજરાતીમાં એનો અર્થ શું થાય છે એ હું તમને સમજાવીશ. બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ, એનો અર્થ એવો થાય છે કે આજથી 2500 વર્ષ પહેલા તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ થઈ ગયા. તેમને આપણે શિક્ષા અને ઉપદેશ આપ્યો છે, એનું હું અનુસરણ કરું છું. બીજા સંગાયનમાં છે ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ. બીજા સંગાયનમાં એમને એવું કહ્યું છે કે આજથી 2500 વર્ષ પહેલા જે તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ છે તેને માનવ કલ્યાણના હેતુ માટે જે ધામ બનાવેલો છે તે ધામ માટે હું શિક્ષા અને ઉપદેશનું અનુસરણ કરું છું. અને ત્રીજો સંગાયન છે સંગમ શરણં ગચ્છામિ. તો આજથી 2500 વર્ષ પહેલા જે તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ થઈ ગયા તેને માનવ કલ્યાણના હેતુ માટે જે સંઘ બનાવેલો છે તે સંઘ દ્વારા હું શિક્ષા અને ઉપદેશનું અનુસરણ કરું છું. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. એટલે આપણે એની વસત નથી તો આપણે શું કરવાનું? સાધુ સાધુ. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. મારું નામ છે સોલંકી નયન દિનેશભાઈ. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. નમો તસ્સય ભગવત અરહત સમ્મા સંબુદ્ધસ્ય, એનો હું તમને ભાવાર્થ કરીને સમજાવીશ. અહીં આખી દુનિયામાં એવા અહીં કોઈ જે વ્યક્તિએ અરહત પદની પ્રાપ્તિ કરી છે, જેઓ સાક્ષાત સમ્યક સંબુદ્ધ છે, તેવા મહામાનવ તથાગત ભગવાન તથાગત બુદ્ધને હું નમન કરું છું, વંદન કરું છું. તેમાં તમે ભગવાન શબ્દ સાંભળ્યો હશે તો ભગવાનનો અર્થ તમને સમજાવીશ. ભગ એટલે ખતમ કરવું, નષ્ટ કરવું, ને વાન એટલે તૃષ્ણાઓ, ઈચ્છાઓ. ટૂંકમાં જે વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છા નષ્ટ કરી નાખે છે તે વ્યક્તિને આગળ સંબોધક વાચક શબ્દ ભગવાન લગાડવામાં આવે છે. આખી દુનિયામાં એવા 2 મહામાનવો થઈ ગયા છે કે જૈનોમાં 24માં તીર્થકર ભગવાન મહાવીર સ્વામી અને આપણામાં બીજા આપણામાં શાસ્તા તથા ભગવાન તથાગત બુદ્ધ. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. ધમ્મમ નમામિ, હું તમને નમન કરું છું. સંગમ નમામિ, હું સંઘને નમન કરું છું. જય ભીમ, જય સંવિધાન. 5 અંગ તો કયા ને? 5 અંગ, શરીરના 5 અંગ. હાથની 10 આંગળી, પગની 10 આંગળી, કપાળ, ઘૂંટણ, પછી હાથનું ઘૂંટણ. અને ઘોડી. મારું નામ રાઠોડ નિકિતા રમેશભાઈ છે. જય ભીમ, જય સંવિધાન. સર્વેને અહીંયાના સંઘ નામ તો ઘણું સાંભળ્યું હતું અને વોટ્સએપમાં પણ જોયું હતું. એ બોધિરાજને આજ પહેલી વાર અમને દર્શન થયા અને એની જ્ઞાન તેજસ્વીતા, જેને કહીએ આપણે કે જ્ઞાન પારમિતા, જેના લીધે આજ સમાજ એક જબરદસ્ત વિહાર પ્રાપ્ત કર્યું છે અને સમાજને અર્પણ કર્યું છે. આમાં મહેનત કરનારથી લઈને ધનદાન આપનારા અને આવું ભવ્ય ભવિષ્યમાં પણ સંઘ મજબૂતીથી ઊભો થાય એવા પ્રયત્નો કરનારા તમામ બોધિસત્વના અંશજો એટલે કે બોધિરાજ જેવા જે કંઈ આગેવાનો છે એ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે હું મારી વાત આગળ લગાવું છું. થોડીક આંખ કેવી રીતે કામ કરે, કાન કેવી રીતે काम करे, नाक केवी रीते सूंघे, कुशील या फिर पारिवारिक वो आपको दीक्षा भी नहीं दे सकता और आपको सील भी नहीं दे सकता। क्यों? वो खुद सील उसकी टूटी हुई है, दूसरे को देगा वो
बताइए, किसी भी आप दुकान पे जाइए, वहां से एक दवा आती है, कोई भी दवाई लीजिए, शीशी लीजिए, उसको खुली हुई मिलेगी, आप खरीद लोगे क्या? मेडिकल से खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना? या खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, वापस कर दोगे मेडिकल वाले को, जाए भैया ये नहीं लेना, मुझे नया दे दे, ठीक है। उसी तरीका से भिक्षु घर से परिवर्जित होता है, उसके बाद वो सील को अपने को कंठस्थ रखता है, सील को कभी वो खराब नहीं होने देता है, और उसका आशीर्वाद आप लोगों को उस रास्ते पर ले जाता है जो एक बहुत बड़ा आपका कल्याण हो सकता है उस रास्ते पर। तो आप किसी के घर भी भिक्षु आते तो उनको उस तरीका से आप ज्ञान लीजिए, बैठा के आप धम्म की चर्चा कीजिए, आप संघ की कीजिए, आप धम्म और भी आपके जो विचार है उनसे लीजिए। लेकिन फालतू में आप किसी भी, अभी हम लोग क्या किया कि ये पाखंड का रास्ता छोड़कर और हम बुद्ध की शरण में आए, पाखंड था उसको छोड़कर बुद्ध की शरण में आए, और फिर भी भिक्षु को पीछे हटाए। क्यों? भिक्षु को आगे रखना चाहिए, हर टाइम भिक्षु की इज्जत और सम्मान जब तुम भिक्षु की करोगे तो बुद्ध कहेगा कि ये बच्चा बुद्ध का ही है, आप भी बुद्ध के ही हैं, ठीक है, कोई दूसरे के नहीं है, आप भी बुद्ध के ही, आप बुद्धि से ही कार्य करते हैं ना, दूसरे की बात को तो नहीं मानते, अपनी बुद्धि से जो करेक्ट होता है उसी को मानते हैं, बुद्धि पर कसौटी पर खरा उतरेगा उसी को मानेंगे, ना कि फालतू की बातों को। इसी के साथ मैं अपना ये विचार खत्म करता हूँ। भंते जी हमारे पास बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको बोलता हूँ। कुशील या फिर पारिवारिक, वो आपको दीक्षा भी नहीं दे सकता और आपको सील भी नहीं दे सकता। क्यों? वो खुद सील उसकी टूटी हुई है, दूसरे को देगा वो? बताइए, किसी भी आप दुकान पे जाइए, वहां से एक दवा आती है, कोई भी दवाई लीजिए, शीशी लीजिए, उसको खुली हुई मिलेगी, आप खरीद लोगे क्या? मेडिकल से खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना? या खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, वापस कर दोगे मेडिकल वाले को, जाए भैया ये नहीं लेना, मुझे नया दे दे, ठीक है। उसी तरीका से भिक्षु घर से परिवर्जित होता है, उसके बाद वो सील को अपने को कंठस्थ रखता है, सील को कभी वो खराब नहीं होने देता है, और उसका आशीर्वाद आप लोगों को उस रास्ते पर ले जाता है जो एक बहुत बड़ा आपका कल्याण हो सकता है उस रास्ते पर। तो आप किसी के घर भी भिक्षु आते तो उनको उस तरीका से आप ज्ञान लीजिए, बैठा के आप धम्म की चर्चा कीजिए, आप संघ की कीजिए, आप धम्म और भी आपके जो विचार है उनसे लीजिए। लेकिन फालतू में आप किसी भी, अभी हम लोग क्या किया कि ये पाखंड का रास्ता छोड़कर और हम बुद्ध की शरण में आए, पाखंड था उसको छोड़कर बुद्ध की शरण में आए, और फिर भी भिक्षु को पीछे हटाए। क्यों? भिक्षु को आगे रखना चाहिए, हर टाइम भिक्षु की इज्जत और सम्मान जब तुम भिक्षु की करोगे तो बुद्ध कहेगा कि ये बच्चा बुद्ध का ही है, आप भी बुद्ध के ही हैं, ठीक है, कोई दूसरे के नहीं है, आप भी बुद्ध के ही, आप बुद्धि से ही कार्य करते हैं ना, दूसरे की बात को तो नहीं मानते, अपनी बुद्धि से जो करेक्ट होता है उसी को मानते हैं, बुद्धि पर कसौटी पर खरा उतरेगा उसी को मानेंगे, ना कि फालतू की बातों को। इसी के साथ मैं अपना ये विचार खत्म करता हूँ। भंते जी हमारे पास बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको बोलता हूँ। बुद्ध शांति के प्रतीक है, आप लोग कोई बात ना करें, महिला मंडल बिल्कुल बात नहीं करेंगे। भंते जी ने आपको सील दिया भी, आनंदी माता वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामी, ठीक है, आदि ददाना वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामी। भंते जी ने आपको इसलिए सील दी है कि आप कभी भी, यानी पार्वती माता वेरमणि बता करते जी ने तो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा,
भक्ति जी ने बताया मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। आप सोच लेना कोई भी आपस में झगड़ा ना करे और प्राणी हिंसा नहीं करें। दूसरा किया आदित्य दाना वेरमणि से कपदम समादयामि, मैं कोई वस्तु की किसी के घर से रोजगार से कोई बात चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद भक्ति जी ने बताया कामेषु मिच्छाचार वेरमणि से कपदम समादयामि, मैं काम तृष्णा से बसी हुई होकर ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा परिवार और मेरा समाज कलंकित हो। भक्ति जी ने उसके बाद बताया वेरमणि से कपदम समादयामि, अपने मुख से किसी की चुगली नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगी। महिलाओं से ज्यादा कहता हूं मैं, ठीक है, चुगली नहीं करूंगी, चुगली नहीं सुनूंगी। उसके बाद में भक्ति जी ने बताया है सुरा वेर मध्य भगवान दाना वेरमणि से कपदम समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब गांजा भांग धतूरे इन सबसे व्रत रहने की आज प्रतिज्ञा करता हूं। आप लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है, क्या ली है? प्रतिज्ञा। और उसके बाद भक्ति जी ने आपको दिया नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, मैं और सम्यक संबुद्ध जो आपको दिखते हुए आपके सामने है उस बुद्ध को, उस बुद्धि को, अपनी बुद्धि को मैं नमन करता हूं। क्या करता हूं? 3 बार नमस्कार करता हूं। भक्ति जी बताया बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं अपनी बुद्धि की शरण में आज से जाता हूं। कितने लोग जाते हैं बताइए ऊपर को आप करके, बुद्ध की शरण में कौन कौन गए? भक्ति जी ने उसके बाद बताया है धम्मं शरणं गच्छामि, उस धम्म को जो कल्याण करने का रास्ता है, एक आपको विचार बताता, रास्ता बताता है, उस धम्म को, धर्म बहुत होते हैं लेकिन धम्म एक ही है धम्म। और धम्म ऐसी चीज है जो आपको कल्याण करने का एक बहुत अच्छा विचार रास्ता बताता है। उसके बाद भक्ति जी ने कहा संगम शरणं गच्छामि, संग, संग क्या है? संग एक दारूबाज का भी होता है, सुनो, संग दारूबाज का भी होता है, संग चुगलखोरों का होता है, संग नेताओं का होता है, लेकिन जो बुद्ध का संग है वो सीख और समाधि पर आधारित है। और उस संघ में आज आप लोग सब ज्वाइन हुए हैं। उसी संघ में संघ किसका होना चाहिए? शील वालों का, ना कि कुशीलों का। उसके बाद अभी आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है कि पूरे अहमदाबाद में हम लोग घूम के आए हैं। ये आपकी जो प्रभात फेरी थी वो निकलते हुए हम लोग आए, और उसके बाद में अब ये जो कारवा आपने अपने हाथ में लिया है, उठाया है, इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। और वो 3 चीज क्या है? मैन, मनी और टाइम। जिस समाज के पास ये 3 चीज उपलब्ध है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो कोई भी कभी पीछे नहीं हो सकता। मैं यानी आप लोग सब संगठित हो जाओ, बाबा साहब ने कहा है कि सब संगठित हो जाओ। मनी, आप लोग सभी अपने अपने बिजनेस पर ध्यान दें, जो भी लोग हैं सब अपने बिजनेस पर ध्यान दें। उसके बाद मैन, मनी और टाइम, आप लोगों को इतना टाइम होना चाहिए बुद्ध विहार में आने के लिए, बुद्ध विहार की देख रेख करने के लिए। और कोई अगर भिक्खु आता है तो उसकी, भिक्खु भी आपके ऊपर ही है ना, कोई दूसरा नहीं है भिक्खु, आप लोग भिक्खु ही आप में से ही निकल के गया है। भक्ति जी सुनिए, भिक्खु भी क्या है कि आपके ही घर से निकल के भिक्खु बनता है। कोई बारिश से नहीं आता, ऊपर से बदल से नहीं टपकता, जमीन से नहीं निकलता, ठीक है। वो एक भिक्खु लाइट है, क्या है? लाइट। वो चमकाता है आप लोगों को, क्या करता है? आपको अच्छा रास्ता पे चलाने का एक अधिकार देता है। फिर भिक्खु का आशीर्वाद, जो शीलवान होता है, शीलवान का ही आप